नमस्ते, वेलकम टू बैक्स एंड अनप्लग सीजन 2। हम हर बार आते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं, बट क्या मैंने आपको अपनी फेवरेट डॉक्टर से मिलाया? जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, आई हैड वन डॉक्टर हु आई यूज्ड टू गो टू blindly because Dr. Anamika is one doctor who is loved by all her patients, not just because of the medicine she gives, but also of how sweet she is. She is working at Baxon's Medical College and Hospital, and I have seen myself be a patient of hers years back. And the best part about it is that she gives you a listening ear, which most doctors don't today. Not just that, she's not just a leading homeopathy doctor at Baxton Medical College and Hospital, she also teaches really well. As an educator, I've seen that her learning, especially in practice of medicine, stays with us as students. She's one of my most favorite people in the world. I often add a smiley when I save her number, whenever I saved her number, and until today it's still there because she's genuinely a person you should know about. Welcome, ma'am. Hi, Dr. Tanya. Hello. And ma'am, आपसे तो I genuinely rely on you so much, and you know it. We share so much in common. Um, Ma'am, one thing we were just talking about was weight loss Yes. and how tough it is to lose weight for people. Believe me, if you go in the right track, it's very easy. But if you're on the wrong track, it takes a lot of effort. First thing, first and foremost, the most important thing which we should understand कि हमारी body कैसी है. We should understand first कि body का structure कैसा है. And what all things is required inside and what all things should be quitted out. So for me, I'm a thyroid patient. So for me, it was very important to avoid all the fatty things, white things, include all the fiber things in my diet. So which I did and I had a good result. And most important thing is we should include exercise in our routine. This is the most important thing. Dr. Bakshi is the person whom I should give the credit. He has induced this in my life because I'm walking because of him. I was on lots of painkiller. I'll tell you. After two C-sex, I have my allergy in my history. My papa, my mama, both of them were joint patients, joint complaint patients. My father was a spondylitis patient, ankylosing spondylitis, and my mother was a rheumatoid arthritis patient. So I had a very bad history of joint pain. What happened actually after my C-sec, allergy concept थोड़ा सा मैं आपको Please, ma'am, please. what is allergy concept? What I'm observing and I'm on myself I'm saying this कि after your body gets weakened, हम जिसको vital force बोलते हैं, the governing part, तो जैसे ही ये वीक पड़ता है ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी शॉक लगा हमको, हम बीमार पड़ते हैं, कोई वायरल होता है, फीमेल्स में स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है, जब कोई ऑपरेशन होता है, जब हम लैक्टेटिंग हो रहा होता है, इवन अब जब हम खाना खाना इतना ख़राब हो गया है मेंसेस में गर्ल्स जो पेशेंट है हमारे मेंसेस में बोलती है जो फैमिली हिस्ट्री में हो रहा है. फॉर एग्जांपल किसी लड़की के हिस्ट्री में पाइल्स हैं, द टाइम द पेशेंट इज हैविंग पीरियड्स पाइल डेवलप करेगा. दोज पेशेंट हु आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन इन हिस्ट्री, पीरियड के समय वो पेन्स डेवलप करेंगे या Yeah. कॉन्स्टिपेशन डेवलप करेगा. Yeah. दिस इज सो रिलेवेंट. आई टेल यू डॉक्टर तानिया, इन एवरी केस आई एम गोइंग टू, बिकॉज यहाँ मैं हॉस्टल में जो बच्चे हमारे आते हैं आई एम ट्रीटिंग देम ऑल्सो. सो हर महीने ऑन पर्टिकुलर डेट दे आर कमिंग टू मी, मैम ये शुरू हो गया फिर से. क्या शुरू हो गया? मैम कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैम पाइल्स हो रहा है, मैम पेन्स हो रहे हैं पैरों में, है ना. समटाइम वी कनेक्ट दिस एज सिम्टम ऑफ पीरियड्स, बट वी हैव टू मेक दिस वेरी क्लियर कि ये सारी उनकी हिस्ट्री में चल रही है, जो अब आ रही है, जो उनके पीरियड्स में उनको बॉडी वीक होती है, अब ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. ये हमको लगता है कि हमारे पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं. नो. एंड व्हेन वी गो फॉर डिफरेंट मेडिसिन टू सर्च कि कौन सी मेडिसिन में पीरियड्स में पेन हो रहा है, कौन सी मेडिसिन में कॉन्स्टिपेशन. नो, दिस इज फैमिली हिस्ट्री विच इज लीडिंग, जो वाइटल फोर्स कम हुआ और ये डेवलप हो गया. सो अब क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारा खाना खराब है. इवन इफ वी आर टेकिंग प्लेन लौकी की सब्जी, घिया की सब्जी, वो सोर्स इज नॉट गुड ना. ऑर्गेनिक कितना ले पाएंगे हम, है कि नहीं? तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा सोर्स कितना ऑथेंटिक है. इवन हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर नॉट ईटिंग हैविंग अ वेरी गुड रिच सोर्स ऑफ फूड, है ना. प्लस हमारा एक्सरसाइज नहीं है, हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है,
जितनी भी हमारे अभी मतलब पिछले कुछ जनरेशन से देखा जाए तो हम मतलब हमारा बहुत जनरेशन right. बहुत गंदी लाइफ लीड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द डाइट, रजीम, रूटीन, एवरीथिंग। सो अब क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हमारे ग्रैंडफादर्स के एज में 60-70 में हो रही थी, हमारे फादर्स में 40 में हो रही थी, अब हमारे में 20 में हो रही है, आगे आना जनरेशन और जल्दी डेवलप करेगा। तो इफ़ हम एक्सरसाइज अपने रूटीन में नहीं लाए ना, तो बहुत ही पैथेटिक होने वाला है कंडीशन, आई एम टेलिंग यू दिस। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि वेट लॉस जो, हाँ, जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी, आई वाज ऑन डेली ऑन पेन किलर्स बिकॉज़ मेरा सी सेक्शन हुआ। शॉक लगा बॉडी को, मेरे बिल्कुल भयंकर पेन्स डेवलप हो गए बैक में, पैर में, हाथ में, शोल्डर्स में, एवरीथिंग, आई वाज इन पेन, ट्रेमेंडस पेन। फिर डॉक्टर बख्शी एक बार आए मेरे पास, मतलब यहाँ हम बात कर रहे थे कोई केस को लेके, देन ही आस्क्ड मी कि क्या हो गया, आई वाज लुकिंग वेरी बैड, पूरा चेहरा स्वेल्ड अप, आई वाज इन पेन। देन आई एक्सप्लेन्ड हिम कि सर मुझे रोज़ लेना पड़ रहा है पेन किलर्स। सो पहले तो 1-2 बार वो समझाया मुझे, फिर एक बार सिंसियरली मुझे डाँटे कि तुम सोचो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा अगर तुम इस तरह से पेन किलर खाती रहोगी, और तुम्हारी किडनी खराब हो जाएँगे, तुम्हारे लिवर्स खराब हो जाएँगे, तो फिर तुमको क्या, कैसे तुम अपने बच्चों को देखोगी? तो दैट डे इट हिट मी हार्ड, वेरी हार्ड। फिर उसके बाद से आई टेक उस स्वेट कि मुझे अब वो एक भी दिन आई एम नॉट गोइंग टू स्किप विदाउट एक्सरसाइज। सो भले मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँ, आई डू इट फॉर 30 मिनट्स, बट आई मेक श्योर दैट आई एक्सरसाइज एवरी डे, एवरी डे। एक कंसेप्ट था पहले कि पीरियड्स हो रहा है तो पेन नहीं करना, आई टेल यू, जिस दिन पीरियड्स हो उस दिन और एक्सरसाइज करो, इट फील्स सो गुड, इट फील्स सो गुड। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है, आई गिव द क्रेडिट डॉक्टर बख्शी सर ऑलवेज, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज गाइडेड मी टुवर्ड द राइट पाथ। कि मेरे, और इवन डाइटरी ऑल्सो, आपसे भी मेरी बात हुई थी डाइट के लिए, यू ओनली गाइडेड मी कि मैम ये सब हटा दीजिए, फाइबर अपने डाइट में लाइए, तो दैट वे इट हेल्प्ड मी। सो आई गेस इट हैज़ बीन अराउंड 8-9 months, इट नो इट्स लॉन्ग जर्नी, बट आई एम एबल टू गेट इट। मैम, आपने बात करी थी वेट लॉस की। वेट लॉस में आपने लास्ट 6 महीने क्या खाया, कैसे खाया? आप सुबह से रात तक का बताइए। श्योर। सो वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है हमको अपनी बॉडी को समझना कि किस तरह का हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड है, उसको बाहर निकालना अपने डाइट से। सो फॉर मी, एज मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था फैट वाली चीज़ों को बाहर निकालना। वो कॉमनली थायराइड पेशेंट को हम एडवाइस भी करते हैं। सो मैंने यूजुअली 5 चीज़ें अवॉइड करी, मतलब मैंने स्ट्रिक्टली बंद करा। दैट वाज मैदा, स्वीट, ग्लूटेन, चीनी एंड मिल्क। मिल्क में मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने कुछ भी नहीं खाए थे। तो इट हेल्प मी अ लॉट। इसमें फ़ायदा मेरी 2 चीज़ें हुई, आई रिड्यूस वेरी क्विकली, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो मुझे दिख रहा है बिकॉज़ ऑफ द डाइट। बहुत बार क्या होता है, वी कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज़ेज़ बट वी आर नॉट लूज़िंग वेट, बिकॉज़ हमको ये नहीं पता कि क्या ऐसा कंटेंट है जो हमको निकालना है बॉडी से, जो हम खाए जा रहे हैं। है ना? बहुत बार ग्लूटेन अब समझ में आ रहा है थोड़ा कि बट ग्लूटेन तो इतने सालों से चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हेल्थ जर्नी पे लोग पहले नहीं थे, दे वर देयर बट ग्लूटेन ही नहीं निकाल पा रहे थे। नाउ व्हेन वी नो इट, इट इज़ वेरी मच हेल्पिंग। फिर हम चीनी तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। वो हेल्प इज़, इट इज़ नॉट हेल्पिंग, क्योंकि शुगर जो ग्लूकोज़ हमारी बॉडी को चाहिए, हमको बाकी सोर्स से मिल जा रहा है। चीनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और वो खाने से बल्कि हमको और 10 चीज़ें डेवलप करती है ना, इंसुलिन, वो सारी चीज़ें जो इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट्स हमारे डेवलप कर रहे हैं। स्पेशली थायराइड के पेशेंट, पीसीओडी के पेशेंट, इनको तो चीनी बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो, नो होना चाहिए। तो वो हमको मैदा इज़ ऑल अगेन गट में चिपकता है, दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, वो तो किसी को नहीं खाना चाहिए एग्ज़ैक्टली। मैदा इज़ नॉट, और पोटैटो स्टार्ची फूड जितना भी है, वो हमको नहीं ऐड करना चाहिए। तो शुरू में सुबह मेरा जो नाश्ता होता है, दैट इज़ मिलेट रोटी। मिलेट रोटी, जौ, बाजरा, ज्वार, एनीथिंग अल्टरनेट करते हैं, वी डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन वन सीरियल। तो हम उसको अल्टरनेट करके एनी मंथ हम फिर जौ, बाजरा, ज्वार रोटी ले लेते हैं, फिर एनी ग्रीन वेजिटेबल जो सीज़नल सब्ज़ी रहती है, वो गुड क्वांटिटी ऑफ सीज़नल सब्ज़ी, रोटी कैन बी 2 1 और 2। फिर 11 ओ क्लॉक, बस आप 12 साढ़े 12 बजे कुछ सैलेड ले लिया, कुछ फाइबर, एनीथिंग जो सीज़नल फ्रूट है, वो जो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं, जो सीज़नल फ्रूट होते हैं, दैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स के। वो भी ज़रूरी है, बिकॉज़ व्हेन यू आर लूज़िंग वेट, अब बाकी चीज़ें और भी लूज़ कर रहे हो, तो उसको भी हमको सप्लीमेंट करना है। देन फिर आप लंच में टेक अ गुड क्वांटिटी ऑफ किनोआ का, हम चावल की तरह बना लेते हैं, वी मेक इट लाइक राइस, और स्टीम करके, एंड देन गुड बॉल ऑफ दाल एंड ग्रीन वेज अगेन। फिर सैलड्स, थोड़ा सा सैलड इज़ ज़रूरी इन एवरी मील। फिर शाम में हम नट्स ले सकते हैं,
एंड सीड्स ले सकते हैं। पंपकिन सीड्स अभी बहुत ईज़िली अवेलेबल है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ अब तो चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं और अब तो वो रोस्टेड फॉर्म में भी आ रहा है, वो खाया भी जाता है क्योंकि अब सॉल्टेड नहीं है तो बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता, बट यू कैन टेक इट इन गुड क्वांटिटी, अब इस तरह से अवेलेबल होता है। रात में मोस्टली हम सूप्स या कुछ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स ले लेते हैं। दैट इज़ द रूटीन और ये बिल्कुल बिलीव मी बिल्कुल भूख नहीं लगती इसके अलावा। दिस इज़ मच, मच, मच। आपको इसके बाद बिल्कुल ज़रा-सी भूख नहीं लगती, कोई टायर्डनेस नहीं लगता। इनफैक्ट व्हेन यू ईट, कभी कुछ त्योहार आ गए, कुछ फेस्टिवल्स आ गए, तो हम जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो नेक्स्ट 2 डेज़ इट इज़ कैरिंग ऑन। वो फिर आपको हेवी लगते रहता है, फिर वो लेथार्जी लगता रहता है, फिर आपका पूरा सिस्टम जो है वो अपसाइड डाउन हो जाता है। शुगर स्पाइक। शुगर स्पाइक है, यस एग्ज़ैक्टली। और वो इतना इफ़ेक्ट करता है, आई एम टेलिंग यू, यहाँ से, नॉट ओनली बॉडी फिज़िकली, मेंटली आल्सो यू आर सो इल, सो डिप्रेस्ड, एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अफेक्टिंग वेरी डीप, अगर समझ सकें तो। So this is one of the best dietary tips that ma'am has given. Fruits, nuts, green vegetables, dals, millet ki roti can be included in your diet if you want to lose weight. Further on, losing weight is not just with a supplement. Exercising is equally important in the morning, and we must take a healthy diet free from all the white, Yes. as ma'am said. Further on, homeopathy for pregnant women, how safe is it? 100%। बट आई विल टेल यू, प्रेगनेंसी इज़ अ केस, हम जब बात करते हैं ना सेफ और अनसेफ की, वो हम तब बात करते हैं जब प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर रहा है कोई भी क्या एटम या न्यूक्लियस, जो भी चीज़, जो मटेरियल है, वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर रहा है। हम जो होम्योपैथी दवाई खाते हैं दैट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग थ्रू एनी ऑर्गन, वो आपकी बॉडी की वाइटलिटी को इम्प्रूव कर रहा है। सो व्हेन यू आर इम्प्रूविंग द वाइटलिटी, इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। इट इज़ लाइक टॉनिक। बल्कि आई विल टेल यू वन थिंग, हम जब प्रेग्नेंट वुमेन को मेडिसिन देते हैं, दे आर इम्प्रूविंग द जनरेशंस इफ दे टेक इट रेगुलरली। इफ दे आर हैविंग एलर्जीज इन देयर ब्लड, अगर उनके ब्लड में एलर्जीज हैं, मतलब एलर्जीज मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, एंड द प्रेग्नेंट वुमन इज टेकिंग दिस होम्योपैथिक मेडिसिन, वो आगे आने वाले जनरेशंस को भी बेटर करती हैं। तो दिस इज 100% सेफ। बल्कि हम तो एडवाइस करते हैं कि एवरी प्रेग्नेंट वुमन शुड, हर प्रेग्नेंट वुमन को अपना ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए फॉर एनी एलिमेंट्स एज अ सप्लीमेंट। बाकी चीज़ें अलग हैं, जैसे आपका जो एंटीनेटल केयर होता है, जिसमें आप माँ का और बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसके अलावा वो अपना चलने दीजिए। पैरेलली आपको हर चीज़ के लिए जो आपकी कॉम्प्लिकेशन, जैसे मॉर्निंग सिकनेस है, आप लीजिए होम्योपैथी दवाई, मतलब बहुत अच्छी दवाई है। आपको वीकनेस हो रही है, आपके सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स आप जो ले रहे हैं, लेते रहिए। आई एम नॉट सेइंग, हम नहीं कहते कि आप मत लीजिए, बट अलोंग विद दैट आप ये बिल्कुल होम्योपैथिक दवाई लीजिए। इससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, सेफ भी है, किसी को आगे में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और आगे आने वाला जनरेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। मैम, अगर रेकरेंट कोल्ड कफ होता है इस सीज़न बच्चों को, तो आप कौन-सी दवाई रेकमेंड करेंगे? दवाई हमारे पास देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये फोकस करना है कि एलर्जीज हमको पकड़नी है। जेनेटिक जो रीज़न होता है हमारी बॉडी में, जो जेनेटिक रीज़न होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमको एड्रेस करना चाहिए। जैसे अगर मेरी फैमिली में, आई टोल्ड यू कि मेरे को बोन्स के प्रॉब्लम थे, ऐसे ही हर फैमिली में कोई ना कोई एलर्जीज प्रिवेल कर रही है, कोई ना कोई एलर्जीज प्रेजेंट है। तो जैसे किसी फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे छींकें आ रही हैं, बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जा रहा है, रनिंग नोज हो रहा है, साइनस टॉन्सिल्स, इन्फेक्शन। हाँ एग्जैक्टली। तो उस केस में हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है, हमारा बैक्सन्स का एलरेट और B22 ड्रॉप्स। इसके 100% रिजल्ट है डॉक्टर तानिया। मतलब व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज़ ये हम हर जनरेशन को दे सकते हैं। ये आप दादी को भी दीजिए, आप मम्मा को भी दीजिए, पापा को भी दीजिए, बच्चों को भी दीजिए, प्रेग्नेंट वुमन को भी दीजिए। तो आपके सारे जनरेशन जो है सेफ भी रहते हैं, और इम्प्रूव तो खैर होना ही है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एलर्जीज़ को पकड़ना ज़रूरी है, और आपको वो ट्रीट करना है। सिम्पटम ट्रीट करने से कुछ नहीं होगा, और आपको जेनेटिकली, आप देखिए जेनेटिकली कोई भी चीज़ हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। हम बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बाय दीज़ मेडिसिन्स, और ये बहुत अच्छा काम करता है डॉक्टर तानिया। एंड यू हैव सीन इन योर क्लिनिक्स आल्सो। नहीं, डेफ़िनिटली मैम। अम, मैम, सभी डॉक्टर्स होम्योपैथी रेकमेंड क्यों नहीं करते? लाइक एलोपैथिक यू आर हाँ, मतलब लाइक आस्किंग। इतना सेफ है। वेरी गुड आई क्वेश्चन, आई विल टेल यू। देखिए डॉक्टर तानिया, बहुत बड़ा रीज़न इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, कि हम जब पढ़ते हैं बीएचएमएस, हमको उनकी जो मॉडर्न मेडिसिन है, उनकी दवाइयाँ पढ़ाई जाती हैं, बट दे आर नॉट स्टडीइंग आवर मेडिसिन। तो हाउ विल दे नो?
पहला बात तो यही है कि दे आर नॉट नोइंग दिस। सेकेंडरी कि अपने साइंस का, नो साइंस इज कंप्लीट, कोई भी साइंस कंप्लीट नहीं होता है, और अपने साइंस का स्कोप एंड लिमिटेशन जानना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली जब हमको दो चीज़ें दिखाई जाती है तो हमको पता है ये इसके लिए, ये इसके लिए, बट दे आर ओनली नोइंग वन व्यू, वो एक ही चीज़ जान रहे हैं, तो दूसरी चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। बट येस, आई टेल यू, आपके भी आई एम श्योर बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स पेशेंट होंगे। मेरे भी बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट है, और नाउ दे आर रेफरिंग ऑल्सो, अब वो भेजते भी हैं। मेरे बहुत सारे, सभी तो नहीं, बट अभी वो जानना ज़रूरी है, लेट होम्योपैथी बिकम द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तब तक हमको वेट करना है। बट अभी भी बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो हमको प्रिस्क्राइब, आके पेशेंट भी हैं खुद भी, और वो पेशेंट भेजते भी हैं व्हेन दे नो। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल स्किन का कोई केस है, स्किन जो है दैट इज़ वेरी क्रॉनिक चीज़, तो उसमें वी डोंट हैव एनीथिंग, सप्रेस कर सकते हैं, बट दे नो कि होम्योपैथी में ही इसका इलाज है। रेस्पिरेटरी पफ्स के अलावा, इनहेलर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। बट अब वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, पेशेंट ही जाके बताते हैं ना। बहुत सारे पेशेंट जो पैरेलल चलाते हैं एलोपैथिक, हम भी एडवाइस करते हैं, जैसे बहुत एक्यूट केस है, बहुत सीवियर केस है, तो हम बोलते हैं कि भई आप साथ में भी एलोपैथिक भी चलाइए, जो आपके पफ्स हैं, इनहेलर्स है, बिकॉज़ वी कैन नॉट विथड्रॉ देम। बॉडी डिपेंडेंट है ऑन स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर्स, तो हम उनको नहीं विथड्रॉ कर सकते। तो हम पैरेलल चलाते हैं, तो वो पेशेंट जाके बताते हैं कि भई आपकी दवाई के साथ हम होम्योपैथी भी खा रहे हैं। देन दे कम टू नो कि अच्छा ये दवाई इतना अच्छा, क्योंकि पहले उनका इलाज काम नहीं कर रहा था, नाउ दैट्स वर्किंग। क्या हो गया? तो उन लोग होम्योपैथी दवाई शुरू किए हैं, नाउ द पेशेंट इज़ बेटर, गेटिंग बेटर। तो वो जाके बताते हैं, देन दे रेफर द पेशेंट अगेन कि भई वहाँ से हमारे पेशेंट को बहुत फ़ायदा था, और वहाँ से आप जाके खाइए। और अब आई एम टेलिंग यू कि अब समझ में आ रहा है शायद कि क्या फ़ायदा है, और स्कोप एंड लिमिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है, बट दे आर नाउ गेटिंग। वो सब में टाइम लगेगा थोड़ा, बट आई एम श्योर वो भी एक दिन टाइम आएगा जब हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेंगे। मैम, आपके 2 बच्चे हैं, आपके सी सेक्शन हुआ था, एंड एज़ वुमेन वी ऑल वांट नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी, बट नहीं हो पाता है बिकॉज़ ऑफ लॉट्स ऑफ रीज़न्स। लॉट्स ऑफ Ma'am, how did you recover from C-section, and what would your advice be to a few people regarding that? फर्स्ट, हाँ, सी सेक्शन, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हम डिलीवरी प्रेगनेंसी ही देखें, अगर नॉर्मल भी हम कर रहे हैं तो बॉडी शॉक में आती है। फॉर दैट होम्योपैथी इज़ द बेस्ट। मैंने अपने सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए होम्योपैथी लिया है। मेरे पेन्स के प्रॉब्लम थे, मैंने र्यूमेट टैबलेट लिया जो हमारा वैक्सन कंपनी का आता है। मुझे सांस, आई वॉज एन एस्थमेटिक पेशेंट इन माई चाइल्डहुड विच डेवलप्ड जब ये प्रेगनेंसी हुई, बॉडी शॉक में आया। आई टुक आस्थाइड टैबलेट्स, और वो इतना वंडरफुल है। मैं इतने सारे पेशेंट को जो अस्थमा के पेशेंट हैं, हम उनको आस्थाइड टैबलेट, आस्थाइड सिरप देते हैं, और बिलीव मी ये 1.5 से 2 महीने में उनका, मतलब अगर सीवियर केस है तो भी उनका पफ हम कम करवा देते हैं। बहुत सारे पेशेंट बिना पफ के हैं, बिना ब्रोंकोडायलेटर्स के हैं, तो दिस वर्क्स वंडरफुल। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपना डाइट अच्छा रखना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है। होम्योपैथी इज़ द बेस्ट थिंग विच यू शुड इंक्लूड इन योर रेजीम, आप जब प्रेग्नेंट हैं तब, इवन लैक्टेटिंग है तब, दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड मैम, ऐसी 3 मेडिसिन्स आप हमेशा अपने पास रखते हो, होम्योपैथी मेडिसिन्स एज़ अ होम्योपैथी डॉक्टर? अ मेरी पहली सबसे आर्य टैब, ह्यूमेड टैब रहती है मेरे पास। रूमेट पेन्स, हाँ, कभी भी जैसे वेदर चेंज होता है, इवन इफ आई एक्सरसाइज ना, थोड़ा प्रॉब्लम तो आता है बिकॉज आई एम हैविंग दैट इन माई जीन्स, तो दैट आई कीप इन माई बैग। थ्रोट ए टैबलेट बिकॉज मैन यू आर स्पीकिंग अ लॉट, तो दिस इज अ लाइफ सेवर, आई टेल यू। जब थोड़ा बोलते बोलते आपका ड्राइनेस होता है, यू कैन टेक दिस। थर्ड इज आस्थाइड बिकॉज आई कीप दैट इन इमरजेंसी, कि कभी कुछ ब्रेथलेसनेस हुई, दैट। हाँ, फोर्थ आई शुड इंक्लूड, आई एम सॉरी, I was asked for No, 3 please medicine. give more. Formula D is the medicine which you can, yes, which you can take in any case of any rash, जैसे अर्टिकेरियल रैश कभी भी हो सकता है। आप कहीं बैठे हैं, आप कुछ खा लिए, वो कभी भी हो सकता है, दैट यू कैन टेक। अर्टिकेरिया, एनी स्किन रैश, एनी itching which comes you without informing you, Very can be interesting. taken, yes. Very interesting. And ma'am, does homeopathy medicine impact during pregnancy and breastfeeding mothers, और इनके लिए इस टाइम पे कोई मेडिसिन जो आप रेकमेंड करोगे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम? हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप देखिए, कैल्शियम हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो उस समय हमारा बैक्सेल कंपनी का कैल्सी ए टैबलेट आता है, प्लस विटामिन डी, ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए हमको लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन हमारी जो बेसिक मेडिसिन है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमको लेना ही चाहिए। प्लस प्रेगनेंसी में आपने एक क्वेश्चन पूछा कि सेफ़ है कि नहीं है, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड, कि हमारे जो मटीरियल ड्रग होते हैं, दैट इज़ नॉट क्रॉसिंग द प्लेसेंटल बैरियर। तो हमको ये सोचना ही नहीं है कि सेफ़ है कि नहीं है, इससे सेफ़ कुछ नहीं हो सकता।
Brilliant. बाकी चीज़ें इवन खाना भी अफेक्ट कर सकता है, बट होम्योपैथी मेडिसिन कभी, क्योंकि ये काम कर रहा है आपके डायनामिक फोर्स पे, वाइटल फोर्स पे, तो ये आपके डायरेक्टली वहाँ नहीं पहुँच रहा जहाँ आप सोच रहे हो। सो इससे सेफ कोई मेडिसिन नहीं हो सकती। मैम, मैं अब आपके साथ एक येस और नो राउंड का श्योर, क्वेश्चन श्योर, शेयर श्योर। करूँगी। आप बस येस और नो में जवाब देना। रोटी बच्चों को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? कितने साल के बच्चों को? गुड क्वेश्चन मैम। 5 से 10 साल या द एज या 1 से 10? 1 से 10 आप ग्लूटेन मत डालिए। रोटी कैन बी ऑफ मिलेट, ग्लूटेन मत दीजिए। ग्लूटेन इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन एनी एज, एट एनी एज। ब्रिलियंट। एंड मैम दूसरा पॉइंट, आप बच्चों को मैगी, जंक फूड कितना दे सकते हो? एडवाइजेबल तो नहीं है, बट इन केस वंस इन अ फोर्टनाइट आप दे दीजिए। दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खराब, हम जो अच्छा खाना भी खा रहे हैं वो भी खराब है। तो ये तो ऑलरेडी खराब है, इसको क्यों दे रहे हैं? तीसरी चीज़ मैम, बच्चों को फ़ोकस कैसे कराएँ स्टडीज़ में? मैंने देखे हैं आपके दोनों बच्चे मैथमेटिक्स में चैंपियन हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर बैकएस्ट चैंपियंस, बोथ ऑफ देम, एंड आई डोंट नो हाउ you've trained both of them to do that. How? What did you do? Tell us a yes or a no here कि बच्चों को फ़ोकस कैसे कराया जाए? इसमें क्या किया जाए, नहीं किया जाए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन इन द सेंस चैनलाइजिंग देयर एनर्जी। आप योगा करा सकते हैं। मैं अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स कराती हूँ। मार्शल आर्ट्स इसलिए कराती हूँ क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपको चैनलाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ बॉयज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो उनको चैनलाइज़ करके फिर उनको बाकी समय इधर-उधर करने का समय नहीं होता है, तो जब वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। फिर दे डोंट गेट डाइवर्टेड। ये एक चीज़ होती है, प्लस अच्छा खाना, गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, उनके ब्रेन ओमेगा 3, ओमेगा कॉम्प्लेक्स आप दीजिए, दिस इज़ वेरी गुड। तो आई मेक श्योर कि उनको नट्स एंड सीड्स मैं ज़रूर देती हूँ। मिल्क मैंने निकाल दिया है उनके बच्चों के बॉडी से डाइट से, बिकॉज़ मिल्क इज़ नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी, तो मैं मिल्क उनको काफ़ी साल से नहीं दे रही हूँ। तो मिल्क आई एम नॉट, बाकी सब खाते हैं, जो मैं खाते हैं हम खाते हैं। यूजुअली हम ग्लूटेन हटा ही दिए हैं, तो ग्लूटेन हम अपने घर में लाते नहीं हैं, तो वैसे ही वो मिलेट्स खा रहे हैं। Jaggery and honey, yes or no? हनी येस, जैगरी ऑल्सो येस। खांड, खांड, देसी खांड, हाँ, देसी खांड इज़ ऑल्सो केक्स, येस। केक्स, चॉकलेट्स, केक्स वन्स इन अ व्हाइल, चॉकलेट ऑल्सो वन्स इन अ व्हाइल, बट बच्चे हैं तो वन्स इन अ फोर्टनाइट दे दिया जाता है, नॉट मच। नूडल्स, नूडल्स नो। पिज़्ज़ाज़, Pizzas occasional, samosas, samosas occasionals, एंड ब्रेड। bread no, strictly no। अब बच्चों के खाने में डालते क्या हो? रोटी खाते हैं, ज्वार की सब्ज़ी। रोटी, रोटी सब्जी, यस। रोटी सब्जी, राइस, वो किनुआ का फ्राइड राइस, फ्राइड किनुआ बना के देती हूँ, दे हैव दैट, और दे ईट इट वेरी लाइक दे वांटेड टू ईट, मतलब ऐसा नहीं कि वो डिसइंटरेस्टली खा रहे हैं या मतलब नहीं, खाना नहीं खा के आ रहे, टिफिन खत्म नहीं कर रहे हैं, तो दे ईट रोटी। अब उनको आदत हो गई है वैसे खाने की, तो नाउ दे नो कि यही मिल रहा है, तो डेफिनेटली भूख लगेगी तो खा ही लेते हैं। Very interesting, ma'am. Thank you. वेलकम। Thank you for this entire episode where we've learned so much. Most importantly, what we should all know today is weight loss is possible. It's possible to get on a healthy diet. It's possible to put your children on a completely healthy diet. And if a working mother like you can do it, who's a doctor, I'm sure everybody else can learn 2 cents out of this and do it as well. Thank you, ma'am. And I've learned so much myself. And I can't wait for all of you to implement this in your lifestyle.